फ्रेंड्स, आज हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन इज आल्सो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, but with specific conditions. So, function is defined as a rule which associate each element of the set A to unique element of the set B. So it is written as f a to b. For all x belongs to A, there exists y belongs to B such that y is equal to f of x. So all elements x belongs to A that form the domain. So D of f is the set A consisting of elements of the set A. Codomain is the set B, and range are those elements which are associated to elements of the set A. That is, range is equal to f of A is equal to f of x belongs to A. So that means कि range of f is subset of the set B. Now how to find total number of functions from A to B? So total number of functions from the set A to set B, that is equal to number of elements of the set B raised to power number of elements of the set A. Suppose करो कि set A में हमारे पास m elements हैं and B में हमारे पास n elements है. Now each element of the set A then can be associated to any one of the n element of the set B. So total number of the function from A to B, that is equal to n raised to power m. Next हमारे पास है real valued functions. If the both non-empty sets A and B, they are the subsets of real numbers, so the mapping f A to B is called रियल वैल्यूड फंक्शंस. एंड नेक्स्ट वन है कि फंक्शन एज ए रिलेशंस. नाउ एज वी हैव प्रीवियस सीन कि रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी, दैट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी. सो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is if it satisfies the following conditions. For each A belongs to A, there exists B belongs to B such that ordered pair A and B that belongs to set F. And second condition, if two elements A, B belongs to F, A, C belongs to F, then B must be equal to C. That means for each element belonging to set A, there must exist unique image in the set B. Now फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास सेट A दिया हुआ है 1 2 3 4 और सेट B दिया हुआ है 1 4 9 16 एंड 25. और रूल हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल एलिमेंट x बिलोंग्स टू A, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या बन गए. जैसे 1 के साथ हमारे पास 1 जुड़ेगा, 2 के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 इज ऑर्डर पेयर 9 एंड 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो वी हैव द इमेजेस कि 1 1 2 4 3 9 एंड 4 6. अब हमारे पास डोमेन क्या हो गया 1 2 3 4. को डोमेन क्या हो गया होल एलिमेंट 1 4 9 16 एंड 25. लेकिन रेंज में हमारे पास क्या आएगा ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर एसोसिएटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ ए. तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है 1 4 9 एंड 16. जो 25 एलिमेंट्स है उसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो हमारे पास क्या है सिमिलरली डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फंक्शंस. हमने फंक्शंस को कैसे मतलब डिनोट करना है. और जैसे फंक्शन एफ है that can be described by listing the images under the f by the points of the domain. जैसे कि हमने अब देखा है कि f of 1 is equal to 1,
f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 9 and f of 4 is equal to 16. एंड सेकेंड मेथड है रोस्टर फॉर्म. जैसे कि हमने रिलेशंस में देखा था, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कनेक्टेड. जैसे f क्या हो गया 1 1, 2 4, 3 9 एंड 4 16. नेक्स्ट है बिल्डर फॉर्म. बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्या था, फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज बाय कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x and y, x belongs to a, y belongs to b and x is related to any rule to the set to the y. जैसे हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, f consisting of x y, x belongs to a and y belongs to b and y is equal to x square. So that is a set builder form. And next है by formula. अगर हमारे पास जो set A is infinite हो, then functions are generally described by a formula. For example, हमारे पास फंक्शन है f set of natural number to natural number. डिस्क्राइब कैसे है, f of x is equal to 2x. तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, बाय फॉर्मूला. तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेंगे, f of 1 is equal to 2, f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 6 and f of 4 is equal to 8 and so on. क्योंकि हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट. तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. कोड में हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. लेकिन रेंज में हमारे पास क्या आएंगे, जो एलिमेंट एसोसिएटेड द बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, 2 4 6 8, दैट इज ऑल इवन नंबर्स. सिमिलर नेक्स्ट है कि हमारे पास कैसे हमने चेक करना है कि जो हमारे पास मैपिंग डिफाइंड है वो फंक्शन फॉर्म कर रही कि नहीं कर रही. तो हमने उसे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन that must be associated to unique element of the codomain. बस हमने ये रूल हमने फंक्शंस के लिए याद रखना है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि a हमारे पास दिया है 1 4 और 9, b हमारे पास दिया है 1 2 -2 एंड 3 और f हमारे पास पेयर्स क्या बन रहे हैं 1 1 4 2 4 -2 9 3. हम ये देख रहे हैं कि जो ये सेट है दैट फॉर्म द रिलेशन बट इट इज़ नॉट फंक्शंस. क्योंकि जो हमारे पास 4 है उसकी दो इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं. एक तो हमारे पास 2, दूसरी हमारे पास क्या है -2. जबकि फंक्शन में हमारे पास क्या है, ईच एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज. दैट मीन्स कि रिलेशन मे नॉट बी फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज द रिलेशन. सेकेंड एग्जाम्पल में चेक करते हैं. हमारे पास दिया हुआ है सेट्स 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 19 1. तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसके साथ जो रिलेटेड सेकंड कोऑर्डिनेट है उनकी इमेज क्या है, यूनिक है. किसी की इमेज क्या है, डबल नहीं एग्जिस्ट कर रही. सो इस केस में हमारे पास क्या है, दिस रूल इज अ फंक्शन. तो डोमेन हमारे पास क्या रहेगा 2 5 8 11 14 17 और रेंज हमारे पास क्या आएगा, दैट विल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एलिमेंट. इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है, दिया हुआ है 1 2 1 3 2 5 4 8. दिस इज आल्सो नॉट फंक्शन. कि जो 1 एलिमेंट है उसकी दो इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है. 1 2 के साथ भी एसोसिएटेड है और 1 3 के साथ भी एसोसिएटेड है. दैट मीन्स इट इज रिलेशन बट नॉट फंक्शन. एंड नेक्स्ट हम इसी तरह नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म्स में देखते हैं कि वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट. जैसे f हमारे पास डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर x हमारे पास क्या है 0 3 के बीच में लाई कर रहा है एंड 3x अगर x हमारे पास क्या है 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा है. तो हम हर एक एलिमेंट की इमेज फाइंड आउट करते हैं. जैसे f ऑफ 0 हमारे पास क्या हो गया 0, f ऑफ 1 क्या हो गया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 हमारे पास क्या हो गया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, f ऑफ 3 हमारे पास क्या हो गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. देखो नेक्स्ट में f ऑफ 3 आल्सो इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 एंड f ऑफ 4 क्या हो गया हमारे पास 3 इंटू 4 12, f ऑफ 5 हमारे पास क्या हो गया 15, f ऑफ 6 हमारे पास क्या हो गया 18 एंड f ऑफ 7 हमारे पास क्या हो गया 21 एंड f ऑफ 8 इज इक्वल टू 24, f ऑफ 9 इज इक्वल टू 27
एंड एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 30। तो हम देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की जो इमेज है दैट इज अ यूनिक, तो दैट मीन्स दिस रूल इज फंक्शन। नेक्स्ट इसी तरह एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास कोई जी फंक्शन डिफाइंड है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 and 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x इफ एक्स लाइज बिटवीन 2 and 10। सिमिलरली जैसे लास्ट एग्जाम्पल देखा था वैसे हम इमेजेस फाइंड आउट करते हैं। जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, जी ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1, जी ऑफ 2, देखो 2 पहले वाले में भी डिस्क्राइब हो रहा है तो हमारे पास क्या रहेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और नेक्स्ट में 2 इक्वल है तो जी ऑफ 2 क्या होगा 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, एंड जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 12, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 15, जी ऑफ 6 इज इक्वल टू 18, जी ऑफ 7 इज इक्वल टू 21, जी ऑफ 8 इज इक्वल टू 24, एंड जी ऑफ 9 इज इक्वल टू 27, एंड जी ऑफ 10 इज इक्वल टू 30। तो अब हम देख रहे हैं कि जी ऑफ 2 की 2 इमेजेस आ रही है, एक तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 पे आ रहा है और दूसरा जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 पे आ रहा है। दैट मीन्स एलिमेंट 2 हैज अ 2 images, so g of x is not a function. That's okay. Thank you.